Namaskar and welcome to Rudra Life. We are almost near the end of the year 2021, and what a year it has been. If anybody wanted to compare a year to a roller coaster ride, it is this year. It is a year that many may have seen the highs of life and the lows of life, but brave are the people who have gone through all this and come out successful in the end. December also is a year when we look forward to the new year. So, we have got to strengthen ourselves to face the challenges that we may face in the new year. Keeping that in mind, we have arranged 4 special Sankalp Pujas in the month of December. They are on the 3rd of December, which will be the Trigunatmak Devi Mahanushthan. On the 9th of December, it will be a Mahamrityunjay Jap. On the 14th of December, we have the Vishnu Sahasranam Path, and on the 25th of December, we have the Sundarkand Path. Now this covers a whole range of deities who can give us strength and fortitude to face the challenges of the future. But what are the specialities of these 4 pujas that we have? Or are there any interlinking between these pujas? Because the deities involved are connected with each other. We have Mr. Akash Mishra, who is an expert on Rudraksha, puja rituals and tantric practices. Let us know more about this puja from him. Akashji, welcome. And we have these 4 extremely powerful pujas arranged in the month of December. How are they important or special, and how are they connected to each other? Firstly, most of us, the followers of Hinduism know that this is the month of Margashirsha. It is an extremely good month for prayers, rituals, pujas, yagnas, homas, and all. So, fortunately, we had these dates, or we selected these days for particular pujas. The first puja being the Trigunatmak Devi Mahanushthan. As we know, Brahma, Vishnu, Mahesh have created this cosmos or the universe. Similarly, in Devi, or the people who worship Devi, Shakti, and in Shakt Mat, they say that Devi is the creator of this universe. Adya Devi, Adya Shakti, in form of Mahasaraswati, Mahalakshmi and Mahakali. Srishti and these 3 deities or Shaktis are nothing but a manifestation of the same divine, Brahman, but in a motherly form. Mahasaraswati is associated as Srishti Shakti or known as Srishti Shakti. उन्हें सृष्टि की आद्य शक्ति कहा गया और सृष्टि की उत्पत्ति नाद से होती है. The creation, the knowledge of creation, the wisdom behind creation is controlled by Devi Mahasaraswati. इसीलिए उन्हें सृष्टि का प्रज्ञा माना गया है, सृष्टि का कारक माना गया है, और साथ ही साथ इन्हें ब्रह्मा जी का अर्धांगिनी भी कहा गया है. दूसरी जो शक्ति है जो पालन करती है, उन्हें स्थिति शक्ति कहते हैं, जो महालक्ष्मी के स्वरूप में होता है. ये न केवल पूरी विश्व ब्रह्मांड को ऐश्वर्य प्रदान करती हैं,
ये विश्व ब्रह्मांड की स्थिति को बनाए रखने में जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है ये उनकी भी अधिष्ठात्री देवी है। She conserves and Right. provides the wealth and prosperity that is there in this world. और संहार शक्ति के स्वरूप में महाकाली को तेज स्वरूप माना गया है। अग्नि, ऊष्मा, तेज, जिससे वो संसार का नाश करती है एक कल्प के बीच में, और साथ ही साथ उन्हें दुष्टों का नाश भी करती हैं। और सृष्टि का जो एक तरह से क्या कहा जाए पुनर्रचना जो होती है, पुनर्रचना में ये वो मटेरियल वापस ले जाकर देवी सरस्वती को प्रदान करती है, और फिर सृष्टि का चक्र फिर क्रमवत चलता रहता है। जो बुरा है या बुराई है उसको नाश भी नाश करके भी करती नया क्रिएशन नए- ताकि नई शक्ति नई ऊर्जा बनी रहे। जी। तो ये इस पूजा का ये महत्व है। दूसरा, इन देवियों का हमने क्यों ये आयोजन रखा है। एक तो जहाँ विद्या, प्रज्ञा, ज्ञान, विज्ञान की बात आती है, देवी सरस्वती का नाम लिया ही लिया जाता है। तो ये जो विद्या के क्षेत्र में है, अभी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, न केवल उनकी विद्या बुद्धि को प्रखर करता है, इट शार्पन्स द इंटेलेक्ट, साथ ही साथ यहाँ पर विद्या बुद्धि हमारे कार्य के क्षेत्र में भी काम आती है। तो जब हम व्हेन वी टेक अप ए प्रोफेशन और ए करियर, आवर नॉलेज, आवर इंटेलेक्ट, विजडम along with Mahalakshmi gives us a better professional life. Successful are those people who are ready to learn new things every day. Exactly. So Mahasaraswati is important throughout one's life, not just the student life. You cannot discard what you have learned, Correct. and you have to keep on upgrading yourself. Correct. Knowledge is continuous, otherwise a person will stagnate. And wherever Mahalakshmi and Mahasaraswati are present, Devi Mahakali is also there. We have to defend ourselves. We have to fight for our rights. She gives us that energy, that motive force to overcome negativities, overcome our Obstructions, enemies. So this puja in a way gives you a whole package. Correct. Not only for children or people who are associated with education, in profession, in career, and as a Devi Mahakali's blessings, we have to stand for our rights also. That gives us. It is an overall package, and on this day there is a ritual that we will be performing along with the mantras and the other rituals associated with the three devis. इसके साथ हम एक ललिता त्रिपुर सुंदरी का पाठ भी करेंगे, शास्त्र नाम का पाठ। जैसा कि बहुत लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, इसे श्री विद्या भी कहा जाता है। दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ साधना ऑफ देवी, और इसे श्री विद्या कहते हैं। साथ ही साथ कामराज विद्या, मतलब ऐसी कोई मनुष्य की कामना नहीं है जो इनकी पूजा से आपको प्राप्त ना हो। इट फुलफिल्स ऑल डिजायर्स। सो एक ये हो गया। उसके बाद दिसंबर के महीने में जैसे आपने बताया 9 तारीख को महामृत्युंजय याद होगा। तो महामृत्युंजय आप सभी जानते हो, ये ऋग्वेद का मंत्र है। और इसमें एक बात पूछना चाहूँगा, the popular perception about Mahamrityunjay is that it's a devotion of Lord Shiva. Exactly. And is it generally for good health and well-being? Is it limited to that, or does it go beyond that also? No, it is not limited to good health or overcoming the fear of death. It is something beyond also. Because the name suggests Mrityu, Yeah. Jay, Mrityunjay, victory or overcoming the fear of death.
It goes beyond that, right? Yeah. There's a epic or a tale in our Puranas that the Mahamrityunjaya mantra was first seen by Rishi Shukracharya, the guru of Vedas. He was an ardent devotee of Lord Shiva. तो उन्होंने तपस्या की कई वर्षों तक शिव जी से, उन्हें महामृत्युंजय मंत्र का उन्हें दृष्टि प्राप्त हुई। और जब भी देवासुर संग्राम होता था तो शुक्राचार्य के विद्या से जितने राक्षस मरते थे या इंजोर्ड होते थे, कुछ होते थे, ये वापस जीवित होते थे इनके इस मंत्र की शक्ति से। तो शुक्राचार्य को इस मंत्र का द्रष्टा माना गया है, महामृत्युंजय का संजीवनी विद्या का द्रष्टा माना गया है, और ये शिव जी की कृपा से हुआ है। जैसे भी आपने प्रश्न पूछा कि ये क्या केवल मृत्यु के भय को दूर करता है या आरोग्य प्रदान करता, नहीं। शुक्राचार्य की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी, अभी जैसे पिछली पूजा में हमने बताया, और जहाँ महालक्ष्मी है वहाँ नारायण आएंगे ही आएंगे, उनकी आद्या शक्ति है महालक्ष्मी। और इसी कारण से आपने सुना होगा बहुत सारे प्रांतों में या भारत भर में वैभव लक्ष्मी की जो पूजा होती है वो शुक्रवार को किया जाता है, क्योंकि शुक्राचार्य उनके अनन्य भक्त। तो जहाँ महालक्ष्मी है वहाँ विष्णु माता है। तो हमारा जो तीसरा पूजा का कार्यक्रम होगा वो विष्णु सहस्त्र नाम की पूजा। ऐसा शास्त्रों में मान्यता है कि जो व्यक्ति इसे स्वयं पाठ करता है, एनीवन हु चांट्स इट और इवन लिसन्स टू इट, किसी को सुनता भी है गाते हुए इसे, तो भी वो इस जन्म में क्या परलोक में भी मुक्ति पाता है। सारे क्लेश, दुख, कष्ट विष्णु सहस्त्रनाम से दूर होते हैं। ये ऐश्वर्य प्रदान करते हैं कि जहाँ, जैसे मैंने बताया, जहाँ नारायण और महालक्ष्मी विद्यमान रहती हैं। इस एक नायक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दो चीज़ें विष्णु सहस्त्रनाम से बहुत अच्छी चीज़ें बताया गया। जैसे जिसको कोई ग्रह की बाधा हो या खास करके सूर्य ग्रह की बाधा हो, उसे विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, क्योंकि इन्हें सूर्य नारायण भी कहा गया है। सूर्य देव को या सन को सूर्य नारायण भी कहा गया है, ये उन्हीं के अंश माने गए। तो ग्रहों के राजा हैं सूर्य, आप उनकी आराधना करें। नवग्रह के कष्ट क्लेश शांत, नई ऊर्जा मिलती है। नई सूर्य ऊर्जा के कारक, एनर्जी, सूर्य जो है ऊर्जा के कारक है। हमारी सृष्टि उन्हीं से फल फूल रही है। दूसरा, ये एक बहुत दुष्कर योग माना गया है, पितृदोष। विष्णु सहस्त्रनाम अभी मैं नहीं जानता हूँ मेरे पूर्वजों ने क्या किया है, हमें तो उसका ज्ञान नहीं है। अगर किसी पंडित ने, किसी ज्ञानी ने कहा कि आपकी इसमें कुंडली में पितृदोष है, कुछ है, तो उसको शमन करने का सबसे अच्छा उपाय विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करो, या कम से कम उसको श्रवण सुनो उसे। तो ये पितृदोष और ग्रह के दोष को शमन करता है। साथ ही विष्णु जी का नाम ले। ऐसा माना जाता है, किसी को, जैसे आपने जवाली की कहानी सुनी है, बहुत ही बुरा व्यक्ति था कर्म से, तो मृत्यु की शैया पर जब लेटा हुआ था तो अपने बेटे को पुकार रहा था कि मुझे पानी पिलाओ। तो उसके मुँह से उसके बेटे का नाम नारायण था। जीवन भर उसने ईश्वर की आराधना नहीं की, कभी कोई नाम नहीं लिया, पूजा नहीं की, लेकिन चूंकि आखिरी श्वास जब निकल रहे थे उसने अपने बेटे को पुकारा था, लेकिन नारायण का नाम उसे भी मुक्ति मिली। तो ये ऐश्वर्य भी प्रदान करता है, ग्रह क्लेश दूर करता है, घर का वातावरण बहुत मधुर रखता है, सामंजस्य से अच्छा बनाए, रिलेशनशिप अच्छा रखता है। और विष्णु को एक तरह से जैसे श्री कृष्ण के अवतार में उन्होंने पूरे महाभारत को लीड किया, शुरू से लीडरशिप एबिलिटीज बढ़ाता है, बिजनेस में ग्रोथ वगैरह देता है। और एक
क्योंकि विष्णु जी का काम है एक संतुलन बनाए रखना सृष्टि में। ये हर प्रकार के न केवल रिश्तों में, अपने कार्य के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, ये एक समन्वय, एक तालमेल, एक संतुलन बनाए रखने में ये हमारे अंदर की वो ऊर्जा और वो शक्ति प्रदान करता है। और नारायण वो है जो हमको शिखर तक जाने के लिए प्रेरित करते हैं या प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं। और जहाँ तक आप जैसे चौथी पूजा पे हैं, जहाँ सुंदरकांड पाठ विष्णु जी का हम ये कर रहे हैं, जहाँ विष्णु हैं वहाँ लक्ष्मी तो रहती है, और या विष्णु या उनके स्वरूप जहाँ होंगे वहाँ हनुमान जी तो आएंगे। परम भक्त मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं हनुमान जी के विषय में बोलते हुए कि शायद ही नायर जी ऐसा कोई भक्त हो या व्यक्ति होगा जहाँ उसे विद्या से जीतना था, उन्हें वहाँ से विद्या से उन्होंने जीता, जहाँ बल से जीतना था बल से जीता, और जहाँ भक्ति की भावना थी, शायद इस सृष्टि में उनके जैसा दास भक्त कोई नहीं है, कोई नहीं। और एकदम निष्ठावान श्रीमान, हर सिचुएशन में, हर स्थिति में उन्हें अपना संतुलन बनाए रखा, ईश्वर में अपनी भक्ति स्थापित रखी और वो किया जो उन्हें करना था। और उनका केंद्र सिर्फ विष्णु श्री राम रूप में, उनका रोम रोम, उनका कण कण में राम बसे। तो जैसे वो आप जानते होंगे रामेश्वर से लंका जाने का बांध बना रहे थे, तो राम जी के मन में कौतुक हुआ कि देखो सारे वानर, रीछ, भालू और इंसान मेरा नाम लिख के पत्थर डाल गया और पत्थर तैर गया और ब्रिज का काम आगे धीरे धीरे बढ़ गया। तो उनके मन में कौतुक है, मैं पत्थर छोड़ कर देता हूँ। तो उन्होंने छोड़ा, वो पानी में डूब गया, तैरने की जगह डूब गया, उनका चेहरा कुछ मलिन सा हो गया। तो वहीं पर हनुमान जी खड़े थे, बोले प्रभु आप मन क्यों छोटा कर रहे हैं? क्यों हमारे सारे वानर, भालू, रीछ सब पानी में पत्थर फेंक रहे, उनके पत्थर फेंक रहे, मैंने फेंका तो डूब गया। बोला प्रभु आप जिसको छोड़ोगे उसको कौन उबारेगा, चाहे वो पत्थर हो, चाहे इंसान हो या कोई चीज। जिसको ईश्वर ने छोड़ दिया उसको तारने वाला संसार में कौन है? वो अपने प्रभु का दुख नहीं देख। तो ऐसे, और जब सीता जी से पहले अशोक वाटिका में मिले, और वो आगे की कहानी प्रसंग आपको पता है कि अक्षय कुमार का वध होना है, तो माँ सीता ने उनके स्वरूप को, उनके ज्ञान और बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर उन्हें अष्ट सिद्धि और नवदीप दान भिक्षा में दी कि आप अष्ट सिद्धि और नव निधि के दाता कहलाओगे। तो राम और हनुमान, इनके बारे में क्या कहें, कितने संदर्भ, कितने कहानियाँ, कितने ये अनवरत चलता रहेगा। तो इस दिन हमने एक सुंदरकांड का पाठ रखा है, इसका 16 आवर्तन किया जाएगा। सुंदरकांड का पाठ होगा, बजरंग बाण का पाठ होगा, हनुमान चालीसा का पाठ होगा। और जैसे कि मैंने बताया, ये एक व्यक्ति में ज्ञान, बुद्धि, बल, पराक्रम देने में सक्षम माना गया है। और जहाँ हनुमान जी हैं, जहाँ आप हनुमान जी का नाम लेते हैं, वहाँ अनेक प्रकार के कष्टों से आप मुक्त रहते हैं। तो ये कुल मिला के हमारे दिसंबर में एक पूजाओं का हमने एक अच्छा वो पैकेज बनाया है। तो आप सब जुड़कर इसमें सम्मिलित होकर हमें कृतार्थ करें।